Hi, good morning students. Today I am going to take some question based on lines, angles and triangles. Though we have learned this chapter in detail, but still today I will take some mixed problem based on it so that you would be more comfortable for this chapter, right? But before starting, I would like to brief about the properties. Lines. If we have one sharp dot, it is called point. And if we have two sharp dot and we join them, then it is called line segment. If we have one dot and at the another end it is endless, then it is called ray. And if both the end are endless, then it is called line. Means line has no end point. Then we learned if we join two arms at one common point, जो वो फॉर्म करते हैं दैट इज कॉल्ड एंगल. ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बट दीज प्रॉपर्टीज विल यूज इन दिस क्वेश्चंस, दैट्स व्हाई आई एम रिपीटिंग. सो टू आर्म्स जॉइन एट वन पॉइंट आर कॉल्ड एंगल. फिर हमने राइट एंगल, सारे एंगल्स के बारे में पढ़ा. देन टू इम्पॉर्टेंट एंगल हमने पढ़े, सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री. Supplementary means if a angle is x, then supplementary of the angle is 180 minus x. Means जो भी angle की value दी है and if suppose we need to find the supplementary of that particular angle, then we will subtract from 180. Like angle is 20 degree, then supplementary of the angle is 160. Or for example another combination like 50, देन अनदर इज, सब में हम डिग्री लगाएंगे, एंगल का डिग्री के बिना कोई मतलब नहीं है. इफ वन एंगल इज 50, देन सप्लीमेंट्री ऑफ द एंगल इज दिस पर्टिकुलर एंगल इज 130. मीन्स वी नीड टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 180. सिमिलरली कॉम्प्लीमेंट्री, इफ अ एंगल इज x डिग्री, देन द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ दिस एंगल इज 90 माइनस x. सेम वे कि अगर एंगल आपका 30 डिग्री है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, 60 डिग्री. और कोई और एग्जांपल ले लीजिए, 40 ले लीजिए तो कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा 50 डिग्री. 75 ले लीजिए तो कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा 15 डिग्री. मीन्स हमको 90 से सब्ट्रैक्ट करना है. कॉम्प्लीमेंट्री की बात करेंगे तो वी नीड टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 90 एंड सप्लीमेंट्री की बात करेंगे तो वी नीड टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 180. सेम हमारा लीनियर पेयर होता है. अगर कोई दो एंगल मिल के 180 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहे हैं, स्ट्रेट एंगल पे एक अगर और लाइन आके ऐड हो रही है या आर्म आके ऐड हो रही है, तो दीज टू एंगल इज मेकिंग अ लीनियर पेयर. ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी. उसके बाद हमने पैरेललोग्राम पढ़ा. जब हम लाइंस के कॉन्सेप्ट से थ्रू हो गए, देन वी लर्न पैरेललोग्राम नहीं, पैरेलल लाइंस. इफ वी हैव two parallel lines, means they are not intersecting with each other. Parallel lines means they are not intersecting and the distance between them is equal, like a railway track. ठीक है. अब parallel lines हमारे पास दो हैं and if one transversal is crossing their path, means वो transversal जो है दो parallel lines से पास हो रही है, दो पॉइंट से पास होगी, राइट? ये हो गया. देन क्या क्या पॉसिबिलिटीज क्रिएट होंगी. एक हमने वेरी इंपॉर्टेंट एंगल पढ़ा, वर्टिकली अपोजिट एंगल. वर्टिकली अपोजिट एंगल मीन्स टू लाइन इंटरसेक्ट एट वन कॉमन पॉइंट, देन अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. लाइक इट इज x डिग्री, देन इट विल बी ऑल्सो x डिग्री. फॉर एग्जाम्पल इट इज y डिग्री, देन इट विल बी ऑल्सो y डिग्री. When two line intersect with each other at one point, तो सबसे पहले हमने पढ़ा vertically opposite. For example, it is a, so it should be equal to a degree. Another parallel line property. अब I am rubbing this because ये आपको समझ में आ गया. Now, apart from vertically opposite, we learned that corresponding angle. Corresponding angle means, for example, this is a angle. It is equivalent to a degree. So corresponding of this is this. This will also a degree. Means
सेम ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे बट एक स्किप करके, ये एंगल के बारे में बात करें तो ये स्किप हो जाएगा एंड दिस वन, these two are equal by the property of corresponding angles. Corresponding angles are equal if two lines are parallel and one transversal is crossing these two parallel line, right? Similarly इस साइड corresponding ये वाला हो जाएगा. अगर हम इसका corresponding निकालें this one, तो इसका corresponding ये हो जाएगा एंड सिमिलरली इसका corresponding ये हो जाएगा. तो हमने ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ी करस्पॉन्डिंग एंगल. देन वी लर्न अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ये हमने जो पढ़ा करस्पॉन्डिंग. फिर हमने पढ़ा दो लाइन पैरेलल हैं एंड वन ट्रांसवर्सल इज इंटरसेक्टिंग दीज टू पैरेलल लाइंस. Then alternate interior angle means this angle and this angle is also equal, like it is a degree, so you can write this is also a degree, but the condition is line should be parallel and one transversal crossing these two parallel lines. Similarly alternate इसका क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा. For example it is b degree, then it is also b degree. अगर हम आउटसाइड का लें अल्टरनेट एक्सटीरियर, ये जो हमने लिए दिस इज अल्टरनेट इंटीरियर. अगर हम अल्टरनेट एक्सटीरियर की बात करें तो इसका अल्टरनेट एक्सटीरियर ये हो जाएगा एंड सिमिलरली इसका अल्टरनेट एक्सटीरियर ये हो जाएगा. ठीक है. सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो लाइन, एंगल, ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स कहीं भी ज्योमेट्री में यूज हो सकती हैं. तो वी शुड अवेयर अबाउट दिस प्रॉपर्टीज और ये हमें टिप्स पे याद होना चाहिए क्योंकि इन्हें हम कहीं भी अप्लाई करेंगे तो एंगल फाइंड करना बहुत ईजी हो जाएगा. एंड अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज इफ टू लाइन्स आर पैरेलल एंड वन ट्रांसवर्सल इज इंटरसेक्टिंग दीज टू पैरेलल लाइन्स, then the sum of consecutive two interior angle means this one and this one, इन दोनों को अगर हम सम करें like it is A and it is B, so consecutive interior का sum is equal to 180 degree. ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको बोलते हैं द सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रॉपर्टी सारी याद आ गई होंगी. सो नाउ वी कैन स्टार्ट क्वेश्चंस. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज इन फिगर लाइन ए बी एंड सी डी and EF intersect at O. Find the measure of angle AOC, DOE and BOF. मीन्स एक फिगर दिया हुआ है उसमें इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पर एंड वी हैव टू फाइंड दीज एंगल्स. डायग्राम जो है ए बी सी डी एंड दिस इज ई एफ. ए बी सी डी एंड ई एफ आर इंटरसेक्टिंग एट O. This angle is given 40 degree and this is also given 35 degree and we need to find this one. बहुत सिंपल क्वेश्चन है बट सारी प्रॉपर्टीज अगर क्लियर हैं तो आप विद इन अ सेकेंड इसको फाइंड कर लेंगे. लाइक दिस इज 40, so this should be equal to 40 by the property of vertically opposite angle, because two line intersecting at one common point, then opposite angles are equal. Similarly this is 35, so this will be also equal to 35 degree. हमें दो एंगल तो ऑलरेडी पता चल गए हैं. अब ज्योमेट्री के फॉर्म में लिखेंगे. ज्योमेट्री में सबसे पहले जो गिवन होता है विल राइट दैट
AOE equals to 40 and angle BOD equals to 35. Now clearly we can see angle AOC equals to BOD. Angle AOC, I already told you, this is equal to BOD by the property of vertically opposite angles. अब ये एंगल क्या है 35, सो AOC इज ऑल्सो इक्वल टू 35 डिग्री लगाना नहीं भूलेंगे हम एंगल में, सो 35 डिग्री। फर्स्ट हमारा आ गया। सेकेंड DOE, 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 तो हम क्या करेंगे, ये हमें पता चल गया, ये हमें पता चल गया, एंड यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल एंगल कितना होगा 180 डिग्री, स्ट्रेट एंगल फॉर्म हो रहा है। सो व्हाट विल डू, 40 प्लस 35 हम करेंगे एंड 180 से उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो वी कैन राइट एंगल AOC मीन्स 35 प्लस एंगल AOE प्लस एंगल EOD, इनका सम कितना होगा 180 डिग्री। इसमें से दो हमें पता चल गए 35 डिग्री एंड 40 डिग्री, ये हमें नहीं मालूम, इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल EOD इक्वल्स टू 180 माइनस 35 माइनस 40, ठीक है, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो योर आंसर विल बी 105 डिग्री। फाइन, सो हमें ये निकालना था EOD एंड नाउ BOF, BOF आप सिमिलरली करके लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी रिकॉल हो जाए अगर आपको, तो आप कोई भी क्वेश्चन विद इन अ मिनट सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन इज, नाउ सेकेंड इज क्वाइट डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन। इफ एन एंगल डिफर्स फ्रॉम इट्स कॉम्प्लीमेंट, angle differs from its complement by 10. Find the angle. Find the angle. यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है, बट एक क्लू दिया हुआ है। सो सबसे पहले हमें वो क्लू को पकड़ना होगा। इफ एन एंगल मीन्स कोई भी एक एंगल कंसीडर कीजिए, लेट एंगल बी x डिग्री, ठीक है, ये हमने अज्यूम किया। इफ एन एंगल डिफर्स मतलब माइनस फ्रॉम इट्स कॉम्प्लीमेंट मीन्स एंगल अगर x है, सो उसका कॉम्प्लीमेंट आपको इमीडिएटली क्लिक होना चाहिए कि 90 माइनस x होगा। एंगल एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट बोथ आर डिफर बाय 10 मीन्स इन दोनों का डिफरेंस जो है दैट इज इक्वल टू 10। यहाँ पर हमें न फिगर दिया है न कुछ क्लू दिया है, सिर्फ इक्वेशन दी हुई है इफ एन एंगल एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो हम सबसे पहले एंगल और उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे, देन दे आर डिफरिंग बाय 10। तो हमने इक्वेशन फॉर्म कर ली। नाउ वी विल ओपन द साइन, 90 माइनस माइनस इज प्लस x, ठीक है। x एंड x विल गिव यू 2x माइनस 90 इक्वल टू 10। सब पे डिग्री लगेगा, 2x इक्वल टू 100 डिग्री बिकॉज 90 उधर जाके ऐड हो जाएगा। सो 2x इक्वल्स टू 100 डिग्री मीन्स x इक्वल टू 100 बाई 2 डिग्री मीन्स 50 डिग्री। सो x आया हमारे पास 50 डिग्री। अगर हम कॉम्प्लीमेंट लिखें इसका, सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ x इज 40 डिग्री।
Why 40? 90 minus 50 means 40 degree. सिंपल क्वेश्चन था, बट इक्वेशन फॉर्म करना हमें आना जरूरी था. सो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन. Now another different question. Two angles whose measures are A and B is such that 2A minus 3B equals to 60 degree. Then find four A upon 5B equals to what? Condition दिए, if they form a linear pair. दोस्तों अब क्वेश्चन का लेवल हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे. वैसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी चैप्टर के अंदर भी प्रिपेयर किए हैं, बट यहाँ पर हम थोड़े लीनियर इक्वेशन मिक्स करके डिफरेंट क्वेश्चंस लेंगे. इस टाइप के क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव टाइप्स में मिलेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मिलेंगे और मेथड वाइज करने में भी आ सकते हैं. ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है, ये सब्जेक्टिव भी हो सकता है एंड ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है. हेयर आई एम टेकिंग एज ए ऑब्जेक्टिव. ऑप्शंस हैं 0, 8/5, 1/2 and 2/3. I am taking as a objective, but it could be a subjective also. और वैसे भी हमें इसे सॉल्व करके देखना होगा, तो हम सॉल्व करेंगे. Two angles whose measures are, जो हमें गिवन दिया है, सबसे पहले हम वो लिखेंगे 2A minus 3B equals to 60 degree. Students, as we learned in linear equation with two variable, यहाँ पर हमारे पास 2 variables हैं. जब भी हमारे पास 2 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन आएगी, सो वी रिक्वायर अनदर इक्वेशन बिकॉज वी कांट सॉल्व 2 वेरिएबल इन 1 इक्वेशन. ठीक है, तो डेफिनेटली क्वेश्चन में कुछ क्लू होगा जिससे हमें एक दूसरी इक्वेशन मिलेगी. लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल को सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि वी रिक्वायर 2 इक्वेशन. ठीक है, मिनिमम 2 इक्वेशन. तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में एक तो जो दिया था गिवन वो हमने लिख लिया. सेकेंड बहुत अच्छा क्लू दिया हुआ है, इफ दे फॉर्म अ लीनियर पेयर. मीन्स क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि देयर आर 2 एंगल्स A and B and they are forming linear pair और उनका एक कॉम्बिनेशन ऐसा दिया हुआ है. So now I can write A plus B equal to 180 degree because the property of linear pair says कि 2 एंगल जो भी दिए उनका सम कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट टू 180 डिग्री. नाउ वी हैव 2 इक्वेशन, सो नाउ वी कैन सॉल्व. अभी हम इसको सॉल्व करने के लिए 2 तरीके हैं. हम यहाँ से A की वैल्यू निकाल लें, कितना हो जाएगा 180 माइनस B डिग्री. इसको हम 1 नाम दे देते हैं, इसे हम 2 नाम दे देते हैं. नाउ put the value of A in equation 2. So 2 A की प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, 180 माइनस B डिग्री माइनस 3B इक्वल्स टू दिया हुआ है 60 डिग्री. सिंपल हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी. बट ये क्वेश्चन आप जब ही अटेम्प्ट कर पाएंगे जब आपको लीनियर इक्वेशन के बारे में भी क्या पता हो कि वो कैसे सॉल्व की जाती है. ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे. 360 माइनस 2B माइनस 3B इक्वल्स टू 60 डिग्री. 360 minus 5B equals to 60 degree. Now we'll collect number and variable. 5B. So we'll get 300 degree equals to 5B. Means 5B equals to
300. So B equals to 300 upon 5. After solving we'll get 60 degree. अब हमारे पास B आ गया है, so we can find A also because linear pair बना रहे हैं वो दोनों. So A आ जाएगा हमारा 180 minus 60 degree means 120 degree. So student, now we have A as well as B. Right? What we have to find? We have to find 4A upon 5B. I am rubbing this. See, we have A which is 120 degree. We have B which is 60 degree. Now we need to find 4A upon 5B. So we'll put the value 5B. इसको हम सॉल्व करेंगे. 62 जा 120 means 8 upon 5. We have 4 options in this question. So what will be our answer? Our answer will be B. ठीक है. So student, दिखने में क्वेश्चन बहुत छोटा था बट हमें इसे सॉल्व करके ही देखना पड़ा. एंड सॉल्व हम जब ही कर पाएंगे जब हमें लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आता होगा. ठीक है. So this was my third question. So another different kind of question is an exterior angle of a triangle is 105 degree and its two interior opposite angles are equal. Each of this equal angle is हमें फाइंड करना है. Again it's an objective kind of question. (72.5) and D is 75 degree. स्टूडेंट, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले सबसे पहले हमें ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए. दिस इज अ ट्रायंगल ABC. ये ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल हुए बिकॉज दे आर कमिंग इनसाइड. दिस इज क्लोज्ड फिगर, सो दीज आर इंटीरियर एंड दिस इज एक्सटीरियर एंगल विच इज गिवन 105 degree. Now the property is the exterior angle of a triangle is always equal to the sum of two interiors. Means if it is x, it is y, इन दोनों का सम मिलके means x plus y equals to 105 degree. Fine. So here we will use this property, sum of two interior angle of triangle is equal to the exterior angle. But the condition is given because again we have two variable हम एक equation में solve नहीं कर सकते. Now यहाँ पर clear है, if its two interior opposite angles are equal means here I have taken two variable but in this case both angles are equal means x and y नहीं है, both are x degree. So you can write here, let the interior angle be x. So the sum of two interior is equal to क्या हो जाएगा 105 degree. So x equal to 105 upon 2 means is 52.5 degree. So what will be your answer? It will be equal to B. So student, these are some
स्मॉल बट ट्रिकी काइंड ऑफ क्वेश्चन, इसके लिए आपको सारी प्रॉपर्टीज टिप्स पे याद होना चाहिए. Another different question is, if a wheel has 6 spokes, if a wheel has 6 spokes equally spaced, then find the measure of angle between two adjacent spoke. सबसे पहले we should know the meaning of adjacent. Like we have this kind of angles, right? If I am talking about this angle, for example it is a degree, so इसका adjacent जो होगा इसका just neighbor होगा, means ये वाला, means ये नहीं, either this or this. Simple से example और लेते हैं, like I am having this, ठीक है. I want to find the adjacent of this angle, so either it will be this or this. Adjacent means just neighbor, ठीक है. सेम क्वेश्चन में हमारे कहा है if a wheel means wheel होगा तो कुछ सर्कुलर होगा, has 6 equal spoke, 1 2 3 4 हो गए 6, 1 2 3 4 5 6. they are not equal because मैंने थोड़ा सा गड़बड़ बनाया है. Now it is quite better, ठीक है. So 6 equal spokes. अब हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट. सबसे पहली बात, दे आर 6 इक्वल, बट हम जितना जानते हैं कि टोटल एंगल जो होता है दिस इज कंप्लीट एंगल एंड इट इज इक्वल टू 360 डिग्री. वी हैव 6 इक्वल पार्ट्स, मीन्स x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू होना कितना चाहिए आइडियली 360. Why we are taking x? Because all are equal. In question it is clearly mentioned. So x plus x plus x 6 times हम add करेंगे, so it is equivalent to 360 because एक wheel complete angle जो form करता है that is 360 degree. So x equal to 360 upon 6 means 60 degree. Now they are asking adjacent. तो 60 का नेक्स्ट एडजेसेंट भी कितना आएगा 60, बिकॉज ऑल एंगल्स आर 60. सो हेयर एडजेसेंट एंगल इज ऑल्सो 60. तो यहाँ पर क्वेश्चन बहुत सिंपल था, क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा लेंदी या प्रॉब्लम नहीं था, लॉन्ग नहीं था, बट द वर्ड वॉज इम्पोर्टेंट, राइट. तो हमें ज्योमेट्री में हर वर्ड का कॉन्सेप्ट पता होना बहुत ज़रूरी है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. सो अनदर वन इज द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एन एंगल supplementary angle of an angle is 1/3 of the angle. Determine the angle. अगेन यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं दिया है, बट क्लू जो है क्वेश्चन के अंदर ही है. सबसे पहले लेट द एंगल बी x. नाउ विल रीड क्वेश्चन. सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एन एंगल. आवर एंगल इज x and supplementary of angle is 180 minus x. As I told you, सप्लीमेंट्री जब भी कहेंगे तो जो भी एंगल दिया है उसको 180 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो आवर एंगल इज x एंड द सप्लीमेंट्री ऑफ x इज 180 माइनस x. अभी हमने केवल इतना पार्ट किया. सप्लीमेंट्री ऑफ एन एंगल इज
is means equals to 1/3 of an angle. So हमने क्या फॉर्म करी, इक्वेशन फॉर्म करी. यहाँ पर वेरिएबल कितना है, एक है. इट इज लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल. सो इसमें हमें दूसरी इक्वेशन की जरूरत है नहीं. वन वेरिएबल इक्वेशन एक से सॉल्व हो जाती है, बट इफ वी हैव लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल मीन्स हमें दूसरा क्लू पता होना बहुत जरूरी है. ना 180 minus x equal to x upon 3. We will collect the variable. So 180 is equal to x by 3 plus x. इसको भी फ्रैक्शन बना लेंगे. We'll take LCM. So we'll get 180. So 180 equals to 4x upon 3. So x equals to 180 into 3 upon 4. We'll cut this. 4 4s are 16, 4 5s are 20. 45 multiplied by 3 will give you 135 degree. So they asked determine the angle. So your angle or your answer is 135 degree. यहाँ पर हमने क्या किया एक बार फिर से बताऊंगी. सप्लीमेंट्री ऑफ एन एंगल. तो सबसे पहले हमने एक एंगल अज्यूम किया. आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं. देयर इज नो नीड टू टेक एक्स, जो आपको वेरिएबल लेना है. बट सप्लीमेंट्री ऑफ दैट क्या होगा, 180 माइनस वेरिएबल जो भी आपने लिया इज 1/3 मीन्स 1/3. ऑफ मीन्स होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ दैट एंगल. सो हमें एक इक्वेशन मिली एंड फिर हमने उस इक्वेशन को सॉल्व करके वैल्यू निकाली. दैट इज इक्वल टू 135 डिग्री. Supplementary, complementary, exterior, interior, these are very important concept. These are very applicable in triangle, angle. So हमें ये बिल्कुल properties जो हैं वो याद होना चाहिए, हम कैसे भी करके इनको यूज कर सकें.